We have somebody who's expert into etiquettes, who's intentionally trained for soft skills, who has been into hospitality for more than 20 years, worked with brands like Marriott and Oberoi, and today she runs her own School of Excellence. Please help me welcome Coach Ruchi Lahoti. आपका स्वागत है. Thank you very much. Hi, everyone. Pleasure to be here. Thank you, Coach Darshan. Great. Okay. Well, Ruchi, before we proceed and we deep dive into our core subject of soft skills, we would love to understand your story, maybe for our viewers, what made you to bring into soft skills and etiquettes and School of Excellence, and how was your journey into hospitality industry, and what was the transition into per se soft skills. So please share your story, please. Seems like yesterday, but I know it's been almost 20 years, but like seems like yesterday. I started my journey with hotels. I was a passionate hotelier. I still am. And I was very clear, uh, like I was talking to someone else this morning that, I am surprised these days youngsters are sometimes confused on what they want to do. I think back in 10th standard, I was very clear of what I wanted to take up as a career and I worked towards it. I got selected for the hotel school and I did my undergraduation from Bombay. After that, I had worked with different hotels, like you have already mentioned, the Oberoi, the Marriott, the Hyatt. I was the business development head for the Accor Group in India. And I was instrumental in getting the Ibis brand. So Ibis Accor का mid scale brand है. Accor is a French Okay. hotel company. और Ibis Okay. होटल उस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 थे. तो पहला हमने गुड़गांव में खोला था, दूसरा Mm-hmm. हमने पूना में खोला था और तीसरा हमारा बॉम्बे में था. आई थिंक Okay. आज तो 50 से ऊपर होंगे इंडिया में Ibis hotels. So I was instrumental, in bringing business to them and doing business development. और उसके बाद मैंने एमबीए करा. तो ये एक और मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स हमको सुन रहे हैं. अगर आपको एमबीए करना है तो प्लीज पहले थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड द वर्क एथिक्स एंड देन परस्यू योर एमबीए. उसमें बहुत Wonderful. बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डिफरेंस आता है. सो आफ्टर वर्किंग फॉर Absolutely. ऑलमोस्ट 10 years I did my MBA. Also, I did my MBA from a hotel specialization school, which is called La Roche. It's based out of Mm-hmm. Switzerland. तो मार्केटिंग में Oh, करा okay. मैंने अपना जी. और उसके बाद वापस इंडिया आई बिकॉज दिस Okay. होम, तो घर आना था वापस. एंड तब मैंने ज्वाइन करा एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी विच इज कॉल्ड Booking.com. इंटरनेशनल कंपनी है, ये ग्लोबल कंपनी है, डच बेस्ड, It's नेदरलैंड्स huge. में. इट्स ह्यूज नाउ. दर्शन, जब मैंने ज्वाइन किया था इनको बैक इन 2012, तो मुझे लोगों को बताना पड़ता था कि जैसे मेक माई ट्रिप होता है ना, वैसे Booking.com है, बट वो नेदरलैंड्स बेस्ड है. इट्स अ डच कंपनी. बट यस, द जर्नी हैज बीन फिनोमिनल. अगेन आई वाज द ओनली वुमेन लीडर व्हेन आई जॉइंड द कंपनी. So Mm-hmm. worked very hard, climbed up the ladder. When I left them after 8 years, I was their country head. तो हमने एक ऑफिस से स्टार्ट किया था इंडिया में, एक लिटरली को वर्किंग स्पेस से स्टार्ट किया था. एंड उसके बाद जब मैंने छोड़ा तब वी वर ऑलमोस्ट 5 ऑफिसेज, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलंबो, कैलकाटा. तो टीम भी बड़ी, 20 से हमने ऑलमोस्ट 100 लोगों को टच किया जब हमने एक्सपैंड किया. और ऑफ कोर्स बिजनेस तो बढ़ा. वी डिड बिकम द ऑलमोस्ट नंबर 2 इन द मार्केट आफ्टर मेक माई ट्रिप, बिकॉज मेक माई ट्रिप इज अ Mm-hmm. होम ग्राउंड ब्रांड. तो हमारा मार्केट शेयर भी काफी बढ़ा. तो अगेन लाइक आई सेड, इट वाज अ फिनोमिनल जर्नी. जब मैं होटल में काम करती थी तो मैं आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. और जब मैं इधर आ गई एज अ ट्रैवल एजेंट, एज एन ओटीए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, आई वाज ऑन द अदर साइड. आई बिकेम द कंसल्टेंट टू द होटल्स. आई यूज्ड टू Mm-hmm. टेल देम कि कैसे उनका बिजनेस बढ़ाएं, कैसे आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएं ऑनलाइन स्पेस में. आई मीन अभी ये सब बहुत इजी हो गया है. इट्स लाइक it's no rocket science, but तब difficult Of था course. क्योंकि e-commerce was fairly new back in 2012. Absolutely. So that has been my journey. उसके बाद I took a sabbatical because I had younger children, I had family. But वापस आना था काम पे, and I realized that there was a big gap. As a professional, as an industry expert, as a hotelier who had an eye for detail, every time I spoke to somebody that I want to start out of finishing school, they were like, we don't have anything like this, and that's something that we really want to fill the gap, because
जैसे जैसे अभी मिलेनियंस है, जेन अल्फा है, काफी गैप आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में, इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक्स, in terms of code of conduct, in terms of the do's and don'ts, what is acceptable, what is not acceptable. क्योंकि especially when I do corporate professional trainings, तो एक गैप आ जाता है जब आप कॉलेज छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, और वो काफी बड़ा जंप होता है, क्योंकि जब तक आप स्कूल में हैं, जब तक आप कॉलेज में हैं, आप शेल्टर्ड है, कुकून है, प्रोटेक्टेड है. But suddenly it is cutthroat competition out there, you know, and it's the survival of the fittest. And the fittest doesn't mean the most qualified, not just qualification in terms of your education, fitting in terms of your attitude, in terms of your work ethics, in terms of your personality. तो आजकल अगर आप बहुत कॉमन कंपनीज में बात करो, एचआर से देखते, अरे इसको क्यों रिजेक्ट करा, अरे नो ही डिडंट फिट इन आवर कल्चर. तो वो कल्चर क्या है, और वो कल्चर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं. इट्स मेड बाय पीपल फॉर द पीपल. वो कोई पीपीटी नहीं है जो लोग फॉलो कर सके, बिकॉज इट्स नॉट वन साइज फिट ऑल. सो द पीपल हैव टू कोलैबोरेट, उनको साथ में आके टीम वर्क, एक दूसरे. अगर आपसे कोई काम नहीं करना चाहता तो आप एक ग्रेडर हो अपने कॉलेज में, स्कूल में, उसका कोई फायदा नहीं है. True. Right? So this was the discussions I had before I started my finishing school, and it's been 3 years I've been running it. I've traveled across India. I've trained different IITs, IITians in their colleges. I've done professional trainings, and it's a long way to go still. Great, congrats. I think first of all, congratulations on your journey. And two, after your sabbatical, you took a call, and then with the family, after 20 years of experience, you wanted to still go, and you're roaring to go. I can see that, and you set up your own finishing school, School of Excellence. I think big congratulations to you on that. Thank you. आपने बहुत Appreciate दो it. तीन शानदार चीजें कही. I think before we jump into our questions, because I got a huge list जो मैंने आपको शेयर किया था, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं रुचि, तो आई थिंक यू विल बेयर विद अस. I'll be पर happy to क्विकली, answer all of them. oh yes, so quickly I'll just see. I can see Tanu is there, Roni, Topper, I think Struggler, Manju, I think Ashwini, Ashok, a lot of people have joined. I think Palak, Nidhi, Khushali, Neeraj, Priya. So yes, a lot of people have joined. I think it talks a lot about your presence. And आपने जो दो तीन चीजें बोली वहां पे मैं जंप करना चाहूंगा. एक तो आपने अपने एमबीए की बात की कि जी. दिस इज ऑफ द लिस्ट, दिस इज ऑफ द हुक, बट आई थिंक यू आर ऑलरेडी देयर. आपने बताया कि कुछ तजुर्बा लेके हमें एमबीए में जाना चाहिए. क्यों? ताकि आपको बेटर समझ आ सके. और मैं एक और बात बताती हूँ, लोग एमबीए क्यों करते हैं? पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, नेटवर्किंग के लिए करते हैं. दैट इज वाई मोस्ट पीपल. सो आपका जो आईएसबी हो गया, या ऑल द कॉर्नेल हो गया, कोई भी आईवी लीग जहां पे आप एमबीए करने जाते हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. आजकल तो इनफैक्ट द न्यू स्टडी दैट आई एम लुकिंग एट, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर वांटिंग टू हायर जस्ट पीपल आउट ऑफ स्कूल, क्योंकि उनको ऑन द जॉब उनको सिखाना है. राइट? So अभी even graduation doesn't hold as, of course you want to become an engineer, of course you want to become an aeronautics, space person, but आप एमबीए करने जाते हो क्योंकि आपका नेटवर्क, और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ इन अ कॉर्पोरेट. एब्सोल्युटली. तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो आप उसको बेटर शेयर कर पाओगे अपने एमबीए स्कूल में, अपनी क्लास में. और एमबीए इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ केस सिनेरियो, जिसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कैसे बेटर कर सकते थे. अगर आप लाइक बैक इन माय स्कूल, वी वर गिवन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट होटल्स के. अरे इनमें ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. That's exactly what is the learning in MBA, right? तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप बुक नॉलेज से कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. और दूसरी बात, लाइक आई सेड, नेटवर्किंग. तो लाइक आई सेड, आपके स्कूल फ्रेंड्स कोर फ्रेंड्स होते हैं. कॉर्पोरेट में what can you do for me, what can I do for you, it is a hard truth out there, right? तो अगर आपके पास एक
पोजीशन होगी कि अरे मैं इस कंपनी में ये पोजीशन पे काम करके आया हूँ और ये सब लोग मेरे कॉलीग्स हैं या फिर ये मेरे एक्स बॉसेस हैं या ये मेरे बैचमेट्स हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अरे यार मुझे इससे मिलवा दे, कैन यू गेट मी एन अपॉइंटमेंट, देख मेरा एक स्टार्टअप का आइडिया है, कैन यू गेट मी इन दैट डोर. ट्रू So to get that foot in the door, you need connections. ट्रू। और एमबीए में वो कनेक्शन बनते हैं, इसलिए मैं एम्फसाइज करती हूँ कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आपकी बेटर ग्रोथ एंड एनरिचमेंट के लिए, बेटर लर्निंग के लिए, और एक आपके नेटवर्क के लिए. तो अगर आप परफेक्ट। इसमें फ्रेशर जाओगे तो it's not worth it. So your return on your investment is not as good as you would have it after you have gained some experience. ये मेरा करेक्ट। मानना है. एब्सोल्युटली बैंग ऑन। आपने Booking.com की बात की, वे बैक जब लोग ई कॉमर्स से इतने वाकिफ नहीं थे, you plunged and you had a roller coaster ride almost for 8 years, which you mentioned, if I remember it right. Yes. What gave you that confidence? आपको क्या हिम्मत मिली कि भी नहीं बॉस मैं ये करूंगी, ये भले अननोन टेरिटरी है, आई विल टेक अ प्लंज? तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? So उस वक्त I was fairly, though I had worked for 10 years, 10 साल से काम करी थी, तो फिर भी अपने आप को मैं थोड़ा as a young professional ही बोलूंगी उस टाइम पे. तो मैंने 2-3 लोगों से बात करी जिनको मैं अपना मेंटोर मानती थी, जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे से ज्यादा दुनिया और इंडस्ट्री देखी थी. True. तो मैंने उनसे बात करी. मनी वॉज अ कंस्ट्रेंट, तो ऑब्वियसली पैसे, एमएनसी है ना, इंटरनेशनल कंपनी है, तो पैसे अच्छे दे रहे थे, बट दैट वॉज सेकेंडरी फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा शिफ्ट था. जैसे कि मैंने बोला, मैं होटल में काम कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां पे काम करना. आई स्टिल लव बीइंग इन होटल्स. इट्स अ ब्यूटिफुली यू नो ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत अच्छे लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, फिनेस है, स्टाइल है, लग्जरी है, तो मुझे वो बहुत पसंद था. तो इट वॉज अ बिग शिफ्ट, फ्रॉम वर्किंग इन टू होटल्स टू कमिंग इन टू अ कॉर्पोरेट डेस्क जॉब, जो मुझे आदत नहीं थी डेस्क जॉब करने की. आई वॉज ऑलवेज ऑन द मूव, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में थी. तो फिर मैंने 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि इट्स अ न्यू इंडस्ट्री, इट्स अ बडिंग इंडस्ट्री, इट्स अ फ्लरिशिंग सेक्टर. तो आई वेंट विद देयर गट, टू बी ऑनेस्ट. और मैंने ये भी अपने आप को बोला था कि ठीक है, 1 साल काम करूंगी, फिर देखा जाएगा. एंड आई यूज्ड टू टेल एवरीबडी कि नहीं, मैं 1 ही साल काम करूंगी और उसके बाद जैसी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी होटल में, आई जंप ऑन टू इट. और मैं बोलती थी, आई यूज्ड टू बी वेरी वोकल अबाउट इट. बट इट सो हैपेंड कि इतनी अच्छी कंपनी है Booking.com, वर्क कल्चर उनका इतना पॉजिटिव है, ग्रोथ मिलती गई, नए असाइनमेंट्स मिलते गए, इंस्पिरेशन आता गया, बिकॉज वी वर ग्रोइंग, वी वर एक्सपैंडिंग. तो पता ही नहीं लगा 8 साल कहाँ निकल गए. परफेक्ट। यू ऑल्सो मेंशन अबाउट के कथरोट कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द जी. फिटेस्ट है, किस तरह से आपका वर्क एथिक है, आपका एटीट्यूड किस तरह से है, तो ये सारे मैं समझ रहा हूं कि समवेयर इट इज ऑल रिलेटेड टू योर एक्सपर्टीज इनटू योर डोमेन विच इज एथिकेट सॉफ्ट जी. स्किल्स. तो आम जनता के लिए, जो हमारे यंग व्यूअर्स है, द प्योर इंस्टाग्राम ऑडियंस, व्हाट डू वी मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स, ये जरा बताइए. सॉफ्ट स्किल्स आर योर इनटैंजिबल स्किल्स. जैसे आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, आपके पास एक डिग्री है, आप दिखा सकते हो मैंने ये कोर्स किया है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मैंने, आई कैन ब्रिंग दिस टू द टेबल. करेक्ट. सॉफ्ट स्किल्स इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. आप क्या हो. आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, बिफोर दे सी योर रिज्यूमे, वो आपको देखते हैं. करेक्ट. दैट इज आप कैसे ड्रेसअप होते हो. सो आई कॉल द ABCs ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स एंड योर पर्सनैलिटी. A means your appearance. कड़वा सच है, लोग कहते हैं कि अरे आई एम क्वालिफाइड, डोंट गो ऑन द लुक्स, बट वी डू. एंड व्हेन आई से लुक्स, आई डोंट से कि आप भगवान का दिया हुआ कुछ नकारो. आई एम नॉट सेइंग यू गो इनटू द गो अंडर द नाइफ. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज, आप छोटे हो, पतले दुबले नहीं हो, टॉल नहीं हो, वो सब सेकेंडरी है. आप कैसे ड्रेसअप करते हो, आप शॉर्ट रह के भी जैसे अपने कपड़े सिलेक्ट करते हो, जैसे अपने पैटर्न सिलेक्ट करते हो, आप बहुत प्रिटी लग सकते हो. आई मीन, आई हैव एग्जांपल्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज हु आर नॉट फेयर, हु आर नॉट थिन, एंड हु आर नॉट वेरी टॉल.
but they have a very impressive personality. Example? I mean, she's tall. Oprah Winfrey, my favorite. Great orator, great speaker. Uh, you won't call her the prettiest, but she's confident. She's Absolutely. appearance उनका spot on है. तो मैं जैसे Michelle Obama, my Oh, favorite, you know. So just look at just the way they style themselves, just the way they choose the colors, the fabrics, the designs, and the patterns. उससे बहुत फर्क पड़ता है. प्लानिंग बहुत जरूरी है. आप सिर्फ सुबह उठ के सीधा जो सामने दिखा पहन लिया, you know, you that doesn't give you confidence. तो जैसे कि मैंने correct. बोला, तीन चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स की. ए, अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग विच इज कॉल्ड ग्रूमिंग. बी इज योर बिहेवियर. Mm-hmm. कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप दरवाजा कैसे खोलते हो, चेयर Mm-hmm. कैसे पुल आउट करते हो, किस तरह से बैठते हो, पॉस्चर कैसा है आपका, स्लाउच करके बैठे हुए हो के सीधे बैठे हो, यू नो एरोगेंटली बैठे हुए हो, या फिर यू नो मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए हो, या फिर बहुत ज्यादा फिडल कर रहे हो, यू नो ऑल दीज आर साइंस ऑफ नर्वसनेस. तो आपका True. बिहेवियर, आप इंटरव्यू देने के बाद उठ के डू यू पुश बैक दैट चेयर. बहुत छोटी चीज है ये. और अगर आप शायद कोई नोटिस ना करे, अगर आप नहीं करोगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा, बट आप करोगे तो लोग कहेंगे अरे वाह, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट. You know, those are the finer things that we at Indian School of Excellence emphasize, which sets you apart, you know, which lets you create those lasting impression and makes you the person that you become. Absolutely. और छोटे छोटे थॉटफुलनेस, बीइंग काइंड टुवर्ड्स पीपल. तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर लोगों की तरफ, यू नो, एंड द बेस्ट ऑफ द बिहेवियर्स आर विजिबल व्हेन पीपल आर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. आप कितने भी रईस हो, आप कितने भी पॉलिश्ड हो, कितने भी अच्छे ड्रेस्ड हो, एक बार अगर कोई चीज आपके मुताबिक ना हो, सिंपल, मैंने बहुत लोगों को देखा है एयरपोर्ट्स में, यू नो, शोइंग देयर ट्रू सेंस Colors. when things don't go according to us. तब आप कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हो. That's part. And last but not the least is communication. Mm-hmm. आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, पर अगर आप उसको किसी को समझा नहीं पा रहे हो, Mm-hmm. तो उसका फायदा क्या है. सो कम्युनिकेशन, इट्स टू वे स्ट्रीट. आप कैसे Mm-hmm. बोलते हो, you know, how great speaker you are, how great orator you are, but also listening skills, जो आजकल हमारे पास बहुत कम है. हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमें सब पता है. तो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, हाँ हाँ मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाला है, अरे यार Correct. उसकी बात सुन तो लो कम से कम. गिव हिम द टाइम दैट दे डिजर्व. करेक्ट. तो यहाँ पे एक सवाल उभर के आ रहा है, बिकॉज आपके जो बातचीत है उसी में से एक सवाल कि अगर मान लीजिए कोई युवा है, somebody who's 18 year old, 20 year old, and preparing to be maybe let's say in the last year of the college, they are preparing for their interviews or maybe they are preparing for projects. वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, आप जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं वो उनको नहीं आता है. What are the few basics जिस पे वो काम कर सकते हैं, जिससे क्विकली इन अ वीक और सो, मे बी हफ्ते 10 दिन में वो अपने आप को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज देर एंटीसिपेटिंग के 10 दिन के बाद मेरा कैंपस इंटरव्यू है. क्या कर सकते, विच आर द बेसिक्स? The basics is, I think you would go with your appearance and ओके. your behavior. ओके. Communication थोड़ा टाइम लगता है. कम्युनिकेशन के हम थोड़े से 10-12 जो इंटरव्यू के सवाल होते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में बहुत सिमिलर सवाल पूछे जाते हैं. यू नो, दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट अ इंटरव्यूअर और एन एम्प्लॉय वांट्स टू नो. यू नो, who you are, what can you bring on the table, give examples of are you a team player, give example of how do you accept change. ये सब बहुत सिमिलर और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको एक आधे घंटे में समझा देता है इंसान के बारे में, कि आप इसको अपनी टीम में यू नो ऐड करना चाहोगे या नहीं चाहोगे. सो आई वुड से अगर आपके पास इतना कम टाइम है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स विल बी योर अपीयरेंस. यू नो, शूज पॉलिश है कि नहीं, सॉक्स मैचिंग है कि नहीं, ट्राउजर का लेंथ, यू नो, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ट्राउजर का फिट,
टाइट है, बहुत लूज है, बेल्ट कैसे मैचिंग है, शर्ट क्रिस्प आयरन है कि नहीं, अगर लेडीज हैं तो डोंट वेयर टू शॉर्ट ड्रेसेस बिकॉज व्हेन यू सिट डाउन it becomes very uncomfortable, so wear full length dresses or wear a trouser. Indian sari is the best if you can manage it. Sari looks very pretty, you Love know. to hear that. For ladies, little bit of makeup is mandatory. Because it highlights your features. मैं नहीं कह रही कि आप केमिकल्स यूज करें और अपनी स्किन को खराब करें, बिकॉज जब आप बेसिक हाईलाइट थोड़ा सा मेकअप करते हैं तो you look more prettier, more presentable, and doesn't look like somebody who just walked out from tsunami or a sandstorm outside. तो आपके बाल कैसे हैं, और ये सब चीजें सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं कि आप उनको प्रेजेंटेबल लगे. It's for you. The day you put that extra effort to select your clothes, iron your clothes, wear fitted clothes, आपका कॉन्फिडेंस हाथ पे आसमान पे होता है. Correct. दूसरा, always have a smile on your face. Because a smile is contagious. सामने वाला भी अगर थोड़ा उसका मूड खराब हो या पहले वाला कैंडिडेट ज्यादा अच्छा ना हो तो वो भी काम डाउन हो जाएगा आपको देख के. मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगी कि हैंडशेक करें. डोंट मेक इट टू फर्म. कुछ स्पेशली जेंटलमैन, कुछ बॉयज को लगता है कि अगर ज्यादा फर्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, इट जस्ट गिव्स यू अ पेन इन योर हैंड. तो वैसा मत करें, जस्ट डू अ फर्म ग्रिप. Assuming कि कोई यंग प्रोफेशनल है, जेंटलमैन है, एंड ही इज मीटिंग द ऑपोजिट पर्सन जो उनका इंटरव्यू ले रहा है, या कोई सीनियर मीटिंग बिजनेस प्रोफेशनल है, या मान लीजिए कोई डिप्लोमेट है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जी. assuming कि कोई ब्यूरोक्रेट है, इज इट ओके टू आस्क कैन वी शेक हैंड्स? No. That becomes, see, when you ask a question like that, सामने वाला कभी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बहुत awkward आंसर है. Hey, can we shake hands? No, I'm sorry. That's being rude. इसलिए आपको जब आप उस सिचुएशन में रहते हैं तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि first of all, the handshake is usually happens within the first 2 or 3 minutes of your meeting, right? When you're building a rapport, when you're meeting them for the first time. So can you just do a simple namaste from a distance? Maybe a gesture of holding hands. Hello, how are you? How is it? तो मैं ये गर्ल्स को मोस्टली बोलती हूँ. जैसे अगर आप जो सामने वाला जिससे आप मिल रहे हो वो एक जेंटलमैन है, सपोज आप एक बिजनेस के एग्जीक्यूटिव हो या किसी मेडिकल फील्ड में हो, आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, एंड यूर अ लेडी एंड यू कैरी कपल ऑफ थिंग्स इन योर हैंड, और आप नहीं चाहते, वैसे तो मैं लाइक आई सेड फर्स्ट टाइम आप कर सकते हो, एज अ लेडी यू कैन एक्सटेंड द हैंड इवन इफ द पर्सन सिटिंग अक्रॉस टू यू इज अ सीनियर. अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में मान लीजिए जहाँ पे चाहे इंटरव्यूज है या फॉर्मल अप्रोच है, बिजनेस मीटिंग्स है, नेटवर्किंग है, हमने देखा है कई लोग जरा ऑकवर्ड होते हैं. तो व्हाट आर द फ्यू रेड फ्लैग्स इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होगी या तो लोग हमसे दूर रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है. ऐसी दो तीन चीजें क्या होती सबसे पहले तो फिजिटिंग करना बंद करिए. ये नहीं करना है गर्ल्स, ये नहीं करना है. आपका साड़ी का पल्लू, आपका ड्रेस, वो सब ठीक है. जब आप घर से निकले या ऑफिस से निकले तो सब चेक करके एक बार शीशे में अपने आप को देख के निकले थे ना, तो इट्स ऑल फाइन. सो स्टॉप फिजिटिंग विद योर क्लोथ्स, एडजस्टिंग योर हेयर. बहुत सारे मेन को मैं जो देखती हूँ जो वो नर्वस रहते हैं, तो एक तो बहुत फास्ट बात करते हैं, दे ईट देयर वर्ड्स. तो वो नहीं करना है. इनफैक्ट अगर आप नर्वस हो तो धीरे बात करो. टेक इनफ ब्रीदिंग बिटवीन योर वर्ड सो यू कैन काम योर माइंड डाउन. फास्ट नहीं, क्योंकि उससे और ज्यादा आप तकलीफ में आ जाओगे. दूसरा, फॉर जेंटलमैन, प्लीज डोंट पुट योर हैंड्स इन दी पॉकेट. ये अगेन एक हमारा एक इनवॉलंटरी जेस्चर हो जाता है व्हेन वी आर नर्वस. तो हम खुद तो छुप नहीं सकते सिचुएशन से, तो हम अपने हाथ डाल लेते हैं पॉकेट में, विच गिव्स अस कंफर्ट, बट दैट कम्स अक्रॉस वेरी अनप्रोफेशनल. मैंने काफी बार देखा है कुछ जेंटलमैन व्हेन दे आर शेकिंग हैंड, मे बी इट्स आउट ऑफ कॉन्फिडेंस बट इट लुक्स एरोगेंट कि आप एक हाथ जेब में है और एक हाथ से आप हैंड शेक कर रहे हैं. वो नहीं करना है. तो और फिर आप दोनों पैरों पे खड़े हो. डोंट स्टैंड ऑन वन लेग. आपका पूरा वजन एक पैर पे नहीं होना चाहिए. व्हेन यूर स्टैंडिंग, स्टैंड कॉन्फिडेंट, रोल योर शोल्डर्स बिहाइंड. तो बेसिकली जस्ट काइंड ऑफ
getting yourself together, gathering yourself, not just gathering your thoughts, अपने आप को भी, एक बार स्थिर करके stand still and, just walk the talk. I mean, like I said, it's not end of the world. It's every day is a learning for you. अगर आज ठीक नहीं हुआ तो कल बेटर करो. बट अगर Okay. आज ठीक नहीं हुआ तो अपने आप को, don't boggle yourself down. Learn from your mistakes, dust yourself up, and do better the next day. ग्रेट. मान लीजिए मैं वहां पहुंच गया, मैं ऑकवर्ड था, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक कर ली, मैं थोड़ा डरा हुआ था, फिर मैंने चाय कॉफी ले लिया, फिर मैंने अपने जैसे लोग ढूंढे. तो मुझे दो तीन आइस ब्रेकर बताइए कि जहाँ मैं वो उसको यूज करके बात कर सकता हूँ, चाहे मैन है, वेमेन है, सीनियर से, जूनियर से, मेरे जैसे हैं, पीयर से, व्हाटएवर इट इज. मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापार के इवेंट में गया हूँ, मैं नेटवर्किंग इवेंट में गया हूँ. तो दो तीन आइस ब्रेकर्स बताइए. जी. एक तो सुनो लोगों को. पहले सुनो फिर बोलो. फर्स्ट हियर देम आउट. तो बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. जरूरी नहीं आपको हमेशा पहले बोलना ही है. आप वहां पे ठीक है, आपको सब आता हो, बट डिपेंड करता है कि लोग क्या बात करें. तो पहले उनको सुनो. बी अ ग्रेट लिसनर, राइट? आफ्टर दैट add your inputs, but don't ever compare your experience to them. कई बार हमने देखा है कि लोग बहुत लाउड हो जाते हैं, चाहे वो मीटिंग्स में हो या प्रोबेबली कोई गैदरिंग में हो. मान लीजिए कोई नेटवर्किंग इवेंट है, स्मॉल एमएसएमई इवेंट है, एनीवेयर लोग लाउड हो जाते हैं. सो यहाँ पे लोग जानते हैं कि ये सही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस दिखने के लिए पीपल शाउट एंड दे बिकम लाउड. व्हाट इज अ बेटर वे टू डील विद इट? क्या करना चाहिए? तो यही मैं बता रही हूँ कि कभी कभी हम इतना अपने आप को, वी वांट टू पुट आवरसेल्फ राइट देयर, आउट देयर, दैट वी डोंट रिमेम्बर द डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग एरोगेंट. करेक्ट. तो वो अपने आप को हमें अंदर से समझना बहुत जरूरी है. और जब आपको लोगों के नजरों से समझ आ जाए कि यार ये द वे दे आर लुकिंग एट मी, या फिर बार बार घड़ी देख रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट बीइंग रेलेवेंट एनी मोर. मैं इनको या तो बोर कर रहा हूँ या मैं इनको फका रहा हूँ. तो मुझे अभी शांत हो जाना चाहिए, सो एज अ इंडिविजुअल, दीज आर द क्यूज दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट. करेक्ट. एक कनेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हो. करेक्ट. इंग्लिश तो आनी ही चाहिए क्योंकि लाइक आई सेड इट्स जस्ट अ कॉमन टर्म करेक्ट. बिटवीन तो डिफरेंट जब हम, लैंग्वेजेस. यस ऑफ कोर्स, तो जब हम बात कर रहे हैं कि भी ये फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, पर अब हम ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी हम लोग टॉक अबाउट वर्चुअली. तो वर्चुअल वर्ल्ड की टॉप थ्री मिस्टेक्स क्या? बिकॉज जनरली लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, या अगर जूम मीटिंग्स पे आ गए, या टीम्स में बात कर रहे हैं, या ग्रुप मीटिंग्स हो रही है, तो व्हाट आर द थ्री बेसिक एटिकेट्स व्हिच पीपल शुड फॉलो ऑन वर्चुअल वर्ल्ड? द नंबर वन, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. अगर आपको पता है कि एक महीना पहले ये या एक हफ्ता पहले या 2 दिन पहले ये मीटिंग होने वाली है, तो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? सो ड्रेस अप प्रोफेशनली एंड टर्न ऑन योर वीडियो. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर. अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए. बोलने की जरूरत ना पड़े कि कैन यू प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, whoever is not talking. मैं ये बहुत कॉमन देखती हूँ. पर क्यों? आई मीन, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट पे डालो अपने आप को. करेक्ट. So I would say these are the three basic things that one must follow for virtual meetings. करेक्ट. सो विल टेक दिस फर्दर. मान लीजिए आप जूम पे हैं या आप स्काइप पे हैं, और आपकी ऑफिशियल मीटिंग है, और यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट, पर आपके सीनियर्स है, आपके जो डिफिकल्ट कॉलीग्स है, वो आपको परेशान कर रहे हैं. हम्म. उस वक्त दो चीजें क्या कर सकते हैं जिससे आप उसे हैंडल कर सकते हैं? एक चीज तो जो आपको हमेशा करनी चाहिए और आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि डिस्कशन आउट ऑफ हैंड जा रहा है और आई एम नॉट एबल टू मैनेज द सिचुएशन, यू कैन जस्ट से आई एम सो सॉरी बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट्स टेक इट ऑफलाइन. ओके. तो आपने वही के वही उसको खत्म कर दिया कि भाई टाइम ही नहीं है, तुम इसको और ट्रैक करना बंद करो, कुछ है तो जस्ट टेक इट ऑफलाइन. वो बोल दिया. और दूसरा, आप उसको एक पर्सनल चैट डाल सकते हो कि I'm really sorry, but I'm not comfortable right now. Can we please take it up little later? ओके. ग्रेट. तो जहां पे आपने बात की कॉलीग्स की, people try to make friends, then they become friend zone, and then they try to be pally with you, uh,
ऐसा होता है young when there are young people are working, they try and come close, physical movement होती है, and especially that makes women employees, your co-workers, your colleagues uncomfortable. कितना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए एक दो वर्किंग कॉलीग्स में या दो वर्किंग प्रोफेशनल्स में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम? आपने कितना समय बिताया है, आपका क्या एसोसिएशन है, वो सेकेंडरी है, बट इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट कितना फिजिकल डिस्टेंस इज अ सेफ डिस्टेंस? See, if I go in typical numbers, then you have to be away from at least 2 to 3 feet away from people. Okay, so what I understand is this much. Yes. One So hand is if okay. I am standing, if somebody is sitting, right, and my associate is sitting and he's asking for my help कि यार ये सिस्टम पे ना ये क्या दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, या ये क्या इसमें फॉर्मूला चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, can you help me with this Excel sheet? So I will go close to him. Even if I'm leaning over, I'll maintain enough distance to not to come close to them, because that gets very uncomfortable. और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बोलूंगी, एक काम कर, why don't, वैसे तो अगर out of good manners and good out of courtesy वो खुद ही बोलेगा कि why don't you sit down and see, मैं पीछे खड़ा होता हूँ, या तो वो पर होगा। मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हाँ, करना चाहिए? तो फिर आप बोलोगे कि एक काम करो, ये जो तुम्हें समझ नहीं पहले तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, आई लीन ओवर एंड आई सी सिस्टम में क्या चल रहा है, बट इफ इट्स टू फार फ्रॉम मी या मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं समझ रहा, तो मैं बोलूंगी एक काम करो, व्हाई डोंट यू फॉरवर्ड इट टू मी, आई गो टू माय डेस्क, आई हैव अ लुक एट इट एंड देन आई कॉल यू। और फिर आप एक मीटिंग रूम में जाएंगे, उस मीटिंग रूम में आप आमने सामने बैठेंगे और लैपटॉप सामने रखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। जब आप आमने सामने बैठते हो तो वैसे आपके बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस हो जाता है। पर I'm not रुचि going to मान sit लीजिए, next to each other. मानते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी कि वर्किंग क्यूबिकल्स होते हैं, आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अगल बगल आपके पास 1.5-2 फीट की जगह है, उससे ज्यादा नहीं होती है, स्पेस क्रंच होता है, एंड देन देयर आर 2-3 ऑफ योर कॉलीग सीनियर है, मान लीजिए आपका अकाउंटेंट है, आपका बॉस है, आपका बिजनेस हेड है, बता रहे कि यार ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों नंबर्स ऊपर नीचे, आपका रिपोर्ट में गड़बड़ है, एक्स वाई जेड गोइंग ऑन। मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आपके ऑफिस में दो कॉलीग्स है, आपका अकाउंटेंट आया है, समथिंग और द अदर व्हिच इज हैपनिंग, how do you manage this? That space Um, thing is a ownership of a woman or somebody. In either cases, it could be, it's a personal space. कैसे better maintain कर सकते हैं? like I said, most of the time, if it's like something which requires too many people to get involved on one desktop or one desk, you just go to a meeting room. उसको एक बड़े से स्क्रीन पे लगा दो, प्रोजेक्टर है या बड़ी सी स्क्रीन है, वहां पे लगा दो और सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं। देन यू डोंट हैव टू गैदर अराउंड वन स्मॉल क्यूबिकल, राइट? और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप उसको बोलो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं देख लेती हूँ, पर वहां पे जगह ही कहाँ है? यू कैन सब, वहां जगह ही कहाँ है खड़े होने की? मैं कैसे आऊं? लाइक आई सेड, फिर sometimes आपको you बताना have to be पड़ेगा transparent. कि सर या मैम जो भी है, कि मैम, काफी बार क्या होता है कि आपके सीनियर्स होते हैं, मैम भी होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मैम थोड़ा मैं देख लूं इसको अलग से, या हाँ, मैं इसको तरीके से थोड़ा समझ के आपको बता सकता हूँ, मुझे करेक्ट, 5 मिनट मिलेगा। करेक्ट। Also, these things are, again, we call this emotional intelligence. जो आपको विद एक्सपीरियंस एंड विद ट्रेनिंग आता है, आपको समझता है कि कब कोई जेन्युइनली इज लीनिंग इनटू इट टू अंडरस्टैंड स्क्रीन पे क्या हो रहा है, या कोई आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। वो आपका, जैसे आपने बोला कि कितने सारा काम करे हो, किस तरह से आपका रैपो है, आई वोंट से रिलेशनशिप, बट किस तरह से आपका रैपो है। बट इवन आई रिमेम्बर बैक इन द डे विद माई बॉस, I would never go as close to him, and we were friends for a very long time. We worked for good 10-12 years together. But it's just that, out of respect and to draw that line, यार ये बॉस है, मैं एसोसिएट हूँ, so I'll just say कि I'll see how क्या चल रहा है, ओके ठीक है, नहीं तो why don't we go to the meeting room डिस्कस, या फिर आप मुझे भेज दो मैं डिस्कस कर, या फिर आप मुझे इसको प्रिंट आउट दे दो मैं देख लेती हूँ। So there are different ways to communicate that you don't have to get into that inner circle if not required. करेक्ट। अगर मुझे किसी को बुलाना है, Hmm. so people typically say, hey, come, let's go. So you bang on and say, because you're buddies, you're friends, you do it in the public domain. क्या वो ठीक है? That is one. Two, अगर मुझे किसी women colleague को बुलाना है, तो what is professionally allowed tapping or what space is allowed? ये बताइए। Like, Darshan, one thing I would say, touching of any sort is not acceptable. The only touch we appreciate in a corporate world is a handshake. Okay. That's it. We don't tap on their shoulders. We won't put a hand around the shoulder. कितनी बार मैंने देखा है, some people when you get overly friendly,
चल यार कॉफी पीने चलते हैं. And I've seen this between male colleagues and female colleagues, you know, and it can get awkward. So don't do it. And I think a lot more training and conversations have to be done with the men, you know, because they may be doing it out of friendliness, but the other person doesn't like it. So just don't. Touching is just, as I said, only handshake. Hug भी अगर होता है, when you know somebody from a very long time, suppose आप एक networking event के लिए गए हो और आप अपने ex boss को वहां मिले हो, and you know you had really fond memories, you know, great working relationship. So mostly in professional environment, it's a side hug. You never do a front hug, you know. So these are the basics, you know, of your you know, etiquette that you have to bear in mind, that some things are absolute no. No, you don't touch, you don't hold, you don't tap, you just talk. Perfect. Okay. Great. I think, you know, we got a lot of questions coming in here now also, but quick rapid fire is there, which is instead of, because we already had good time in terms of almost like an hour, which we have been discussing on soft skills and etiquettes. So quick rapid fire for next 3 minutes. Is that okay with you? Sure, absolutely, go ahead. Great. Okay. Uh, one first. Okay. Okay. Great. One bad habit which kills your first impression, which should be never done. One bad habit that kills your first impression: dressing, not thinking or not planning your dressing, and bad breath. Okay. Like if you're a smoker, you know, Okay. if you smoke, please have a gum, please have a mint. Okay. And what works better, eye contact or posture? Eye contact. Eye contact. Okay. Are colors important in etiquette? What colors you wear? Yes, extremely important. Okay. You have to know what are the day colors, what are the night colors, what are the powerful colors, what are the subtle colors. Yes. Great. And if we talk about dating, because you know there are a lot of questions which I've received, which I think we could not discuss in because of the paucity of the time. One thing which guys should not do on the first date. Don't talk too much about yourself unless you are asked. Don't just go on. I mean, I've had situations where people just love to talk. Man, अपना बखान नहीं करना है. Let Okay. the other person discover you. और सामने वाले को मौका दो बोलने का. उनसे भी पूछो Okay. उनके बारे में. You know, and basic courtesy, especially for boys, basic courtesies, you know, which is a gentleman's behavior. Please hold the door for the lady. Please pull the chair for the lady. Please offer your space for the lady. Please be thoughtful. You know, bill तक मैं नहीं चाहूंगी कि bill कौन pay करेगा. That's a little tricky subject. I would say the gentleman should, because we still have to, like chivalry. I mean, I have a complete course on chivalry, and chivalry is not dead. It's It extremely is important. still on. Absolutely. Ask the ladies when men act chivalrous how they feel vis-a-vis the men who don't. True. So, you know, these are the things, like, you know. So this was don'ts. What is one thing which they should do, which will make their partner or uh, the spouse or the date happy? Say it again. I didn't get the question. What is one thing which they should do, which will make the partner or the date or the spouse happy? Make them comfortable. Understand the cues. Understand the cues in their eye contact or in their gestures that they're doing. कि यार सब ठीक है ना? तुम बार बार फोन देख रहे हो, किसी का फोन आने वाला है. नहीं यार, मॉम बहुत चिंता करेंगी, मैंने उनको बताया नहीं है. हाँ ठीक है ना? But be thoughtful. You know, so just be thoughtful and be understand, you know, what they're trying to communicate. Just be If aware some of the situations. if somebody is ghosting you on social media, तो क्या करना चाहिए? Try करो, और अगर नहीं हो रहा है तो जाने दो. It's okay. It's not end of the world. कोशिश What पूरी is the करो. जैसे कभी कभी बिजनेस में भी ऐसा होता है दर्शन, कि यू नो आप किसी को बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो, यू नो इट्स अ पर्सपेक्टिव, तो फॉलो अप बहुत जरूरी है. आप उनको चेस करो पोलाइटली, पर अगर आपको लगता है कि जवाब नहीं करें तो छोड़ दो उनको. Just let it correct? be. If they need you, they'll come back to you. Correct. बिजनेस में कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो लाउड होना अच्छी बात है या साइलेंट एक्सुबरेंस अच्छा होता है? वापस वाली एक बार, बिजनेस में बिजनेस में कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो लाउड होना अच्छी बात है या साइलेंट एक्सुबरेंस अच्छा होता है? नहीं, you have to maintain. I mean, you have to be upfront and transparent.
बट डोंट हैव साइलेंट डजंट गो ऑलवेज. अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट उनको नहीं समझ आएगा कि उनको प्रॉब्लम है. I mean, we are all humans at the end of the day. आपको क्या होगा किसी की कोई चीज ठीक नहीं लगी या suppose you were giving a presentation and somebody had a different perspective and you thought that oh they stole my credit. So don't go silent. Go and tell them that what you did in the afternoon in the meeting today I didn't quite like it. क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे नहीं तो he'll say oh really I'm so sorry it was not intentional. Next time it won't happen. बात वही की वही क्लियर हो गई. आप अंदर ग्रज रखोगे आप साइलेंट रहोगे आपको लगेगा he doesn't like me or she doesn't like me and the other person doesn't even know that you're upset. So keep the keep the communication always open. What are two non-negotiables for you when you move out for a meeting? Okay. For me, punctuality. Uh, you have to be on time. I mean, if you tell somebody, or if you can't, then tell them in advance ताकि वो अपना प्लान कुछ और बना ले. अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं कर सकती हूँ ना प्लान. अगर आप बोलोगे कि नहीं अभी नहीं शाम को करेंगे तो टेल मी इन एडवांस. डोंट टेल मी लास्ट मिनट एंड डोंट टेल मी आफ्टर द टाइम हैज पास्ड. तो वो पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप टाइम पे कहीं भी पहुंचे या किसी को जो टाइम दिया उसको ऑनर करें. और दूसरा स्टिक टू योर कमिटमेंट्स. अगर मैंने आपको बोला है कि आई सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन और आई सेंड यू दिस डॉक इन 24 hours, then send it in 24 hours. Being into soft skills and in the arena of social media, being casual is important or still maintaining your dignity is important? Very much, very, very important. You have to. It's called prim and proper. It's still a word. And professionally, you have to be prim and proper. You can't let your guards down. I tell this to my corporate trainees also कि अगर आप ऑफिस पार्टी के लिए भी गए हो, आपको ऑफिस अगर उस पार्टी के लिए पे कर रहा है तो आप स्टिल एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो. तो ध्यान दो कि आप लाइक इफ समटाइम यू गेट ड्रंक, आप कैसे डांस कर रहे हो, किसके साथ डांस कर रहे हो, कैसे बैठे हो, क्योंकि आप फिर भी अपने कॉलीग्स, अपने बॉसेस, अपने जूनियर्स के साथ हो. डोंट डू एनीथिंग जो अगले दिन आपको एम्बैरेस करे. तो प्रिम एंड प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होना जरूरी है. And what is one ritual which you do every single day for yourself? I have to-do list which I look at it every day. Okay. How do you motivate yourself? How do I motivate myself? I think the whole hunger of being out there to train people, to see the difference that I can make them. I have so many reviews that I get from youngsters, and the way I touch their lives and the kind of, because a lot of us are not aware. हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं. So that motivates me, that inspires me when I can make a difference to people's life and put them on the right direction. Meditation or music? I'm sorry? Meditation or music? Meditation. Coffee or chocolate? Coffee. You like fast food? I'm a foodie, I would say. Great. And what's your dream? What's my drink? Dream. Say it again. What is your dream? My dream. All right, my dream. Well, I haven't really thought about it. I think I'm already living my dream. I mean, everything is touch wood going fine, with my family, with my profession, with myself. No complaints. I think I'm already living a dream. Great, Tathastu. So what is going to be driving you for next 12 months, for 2026? Oh, there's a lot. I want to reach out to more individuals. I want to reach out to more professionals. I think I want to work a little bit. I want to move to a new house. That's a personal goal. So that's a dream, yeah. That's a dream. But yeah, it's going to expand from here. In fact, I have some plans already in place. Great. And it's going to be amazing. It's going to be amazing 2026 for everyone, I hope. Perfect. And do you manifest? I do. Great. Wonderful. I think, Ruchi, we had a wonderful time. It was great talking to you. A lot of tips and tricks coming in from you and directly from the horse's mouth, I would say. So once again, बहुत शुक्रिया आपका, because आपने जिस तरह से इन्वॉल्व होके डीप डाइव करके प्रैक्टिकलिटी से बात की है, डिटेल में जाके बात की, जहाँ पे आपको बताना था कि ये करना है, ये नहीं करना है. Actually, you took a master class in last, I think, I would say 75 minutes. So once again, thank you so much. और आपने बहुत वैल्यू पे की है यहाँ पे.
जिस तरह से आप अपने पेड वर्कशॉप में, आपके ट्रेनिंग्स में जो सिखाते हैं, आई थिंक आपने वही चीजें यहाँ पे सिखाई है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thanks to you, Coach Darshan. It was phenomenal chatting with you. There were some wonderful questions, and I can see some comments coming in. So you have Oh, great yes, following. love you, both of you. So thank you, Azhar Sheikh. And hi, ma'am, how are you? Free fire or fire play? Okay, great. I think बहुत सारे लोगों ने, so let's quickly acknowledge them. Hello, ma'am, Roma Soren. Hello, sir. And I think a lot of people have joined and say thank you to us. So I think, Ruchi, we had a wonderful session. Thank you Yes. so I want much. to And thank once you and again, your team for doing such a great job. It was extremely professionally well managed. So good luck to you for the future. thank you so much. Thank you so much. I'm pretty excited. These kind words really help us and motivate us to do much better. So thank you so much. Thank you. Thank you. Have a great weekend, guys.